Solutions can be ideal if they are following the Raoult's law. As we know that in unit solution class 12th chemistry, we are basically having three type of solution: solid solution, liquid solution and gaseous solution. And if the solution is a liquid solution, अगर जो solution है वो लिक्विड सोल्यूशन है और इसमें जो दोनों पार्ट्स हैं सॉल्वेंट एंड सोल्यूट बोथ आर लिक्विड, सोल्यूट भी कैसा है, लिक्विड है, और सॉल्वेंट भी कैसा है, लिक्विड है, बोथ आर लिक्विड, देन दिस सॉल्यूशन is said to be a solution if it is ideal and if the change in enthalpy is zero and change in volume mix is also zero. So no heat is evolved and no heat is absorbed while we are making solution. But sometime the solution is not ideal, means it is not following the Raoult law. Then why and what is the reason behind it? Here a question from the NEET 2020, the mixture which shows a positive deviation. Now as I said कि ideal solution है, liquid solution है, and यहाँ पे we are talking about the binary, only binary solution के बारे में बात करेंगे, means इसके two ही component है, solute and solvent. And if it is not following Raoult law, means it's not a ideal solution, then it can either show a positive deviation or the negative deviation. For positive deviation के लिए क्या condition होनी चाहिए? Positive deviation अगर वो show कर रहा है means it is not an ideal solution, तो ये जो new force of attraction है between solute and solvent, it is very weak as compared to the intermolecular force between the constituent particle of A, जो भी हमारा solute है उसकी जो particles है उनके बीच में जो interbonding या intermolecular force है, it is greater than the new force of formation and also and BB. So that is the condition for the positive deviation. Now because यहाँ पे जो condition है वो positive deviation के लिए है कि यहाँ से कौन सा, इन चारों में से कौन सा ऐसा solution है जो कि positive deviation show करेगा. Let's see benzene and toluene. अगर मैं benzene and toluene की बात करूं तो ये जो हमारा A ऑप्शन दिया है that is the benzene and toluene, जो कि दोनों क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक सॉल्वेंट कह लो, and both are having a equal type of intermolecular forces, so they are near to ideal solution, or we can say this is the they are forming a ideal solution, और यहाँ पे हम इसको अप्रोक्सीमेट कहेंगे कि ये आइडल सोल्यूशन है. तो जो आइडल सोल्यूशन है वो तो पॉजिटिव डेविएशन नहीं देगा, दोनों ही हमारे एरोमेटिक एंड हैविंग अ सेम टाइप ऑफ इंटर बॉन्डिंग या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो दे आर शोइंग एज अ आइडल सोल्यूशन. ये आइडल है, जो आइडल है वो तो ना नेगेटिव देगा ना पॉजिटिव देगा. नाउ लेट्स सी द बी ऑप्शन. बी ऑप्शन जो है दैट इज द एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म. एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म. एसीटोन के लिए क्या है, दैट इज अ CH3 एंड COCH3 एंड क्लोरोफॉर्म दैट इज HCCl एंड Cl. यहाँ पे जो न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में बन रहा है, it is a much more as compared to the intermolecular forces between the molecule of acetone and the molecule of chloroform. तो यहाँ पे हम कहेंगे जो AB force of attraction है, it is higher as compared to AA and BB.
तो ये क्या करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो ऑप्शन ए भी करेक्ट नहीं है, वो तो नियरली आइडल सोल्यूशन है। बी भी नहीं है, वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, क्योंकि जो न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रहा है इट इज मच मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन एंड बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द क्लोरोफॉर्म। तो इसीलिए ये क्या करेगा, ये हमें यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन देगा। नाउ जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी, दैट इज द क्लोरोइथेन ब्रोमोइथेन। सो ऑप्शन सी जो है दैट इज द क्लोरोइथेन एंड ब्रोमोइथेन। तो ये दोनों तो हेलो एल्केन है and they are having again the same type of force of attraction. So whatever we are having the force of attraction between A and B means chloroethane and bromoethane के बीच में जो force of attraction होगा it is of a same type whatever the molecule of chloroethane and bromethane is having individually. तो यहाँ पे जो A अगर मैं इसे A मान लूँ, इसे B मान लूँ, तो जो AB force of attraction it is nearly to AA and equal to BB. तो ये भी क्या होगा, it is near to ideal solution. Excuse me. ये भी आइडल सोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। तो पॉजिटिव डेविएशन तो अभी तक किसी ने नहीं दिया। नाउ लेट्स सी द ऑप्शन डी। अब लास्ट ऑप्शन है, ऑब्वियसली यही करेक्ट होगा क्योंकि तीनों ऑप्शन तो पहले वाले करेक्ट है ही नहीं है, बट ब्लाइंडली मेकिंग इट अ करेक्ट। लेट्स सी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। नाउ इथेनॉल एंड एसीटोन। यस, जो न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एसीटोन एंड इथेनॉल बनेगा इट इज वेरी वीक एज कंपेयर टू द force of attraction between the ethanol and acetone and it will show the positive deviation. तो यहाँ पे हम अगर देखें कि इथेनॉल एंड जो हमारा एसीटोन है उसमें जो न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है दैट इज अ वीक as compared to the intermolecular forces of ethanol and acetone. क्योंकि जो इथेनॉल है इसमें हम क्या से सॉरी इथेनॉल है, नॉट इथेनॉल, सॉरी टू से दैट, इथेनॉल है, ये अल्कोहल है, तो यहाँ पे C2H5OH है और यहाँ पे ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा वो कैसे हो जाएगा, इस ये एक मॉलिक्यूल है, इसको हम इस तरह लिख देंगे। और एज वी नो दैट ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। दूसरा मॉलिक्यूल हम बना लेते हैं, किसका मॉलिक्यूल बनाएंगे, वी कैन से वी आर मेकिंग दी C2H5, एक और हमने बना लिया। तो यहाँ पे ये वाले इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और या हम इसे इस तरह से लिखते हैं, थोड़ा ऊपर करके लिख लेते हैं क्योंकि हमने दोनों H को पास में लेके आना है और O यहाँ लिखेंगे और H यहाँ लिखेंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे C2H5। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में बनेगा, यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बट जब एसीटोन एंटर करेगा, एसीटोन दैट इज CH3 and CO and CH3, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, ये नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जो हमारा C2H5 and OH, ये जो OH है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, what we are getting here, अगर मैं इसे देखूं ध्यान से तो what we are getting here that is a CH3, ये ऐसे रहेगा और ये जो नेगेटिव बॉन्ड है मैं इसे इधर लिख लेती हूँ, इसके पास नेगेटिव चार्ज चला गया है और ये OH इसके पास आ गया है C2H5 और क्योंकि अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये अपने आप को वापस अपना जो इलेक्ट्रॉन रिटेन करेगा और इसको इससे ले लेगा और नाउ इट विल अटेन अ पॉजिटिव चार्ज। तो ये किसके पास मूव करेगा, इसके पास मूव कर जाएगा और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा। एंड व्हाट वी आर गेटिंग हियर CH3 एंड वी आर गेटिंग हियर OH
and O and C2H5, तो दिस इज द हेमिकीटल हमें यहाँ मिल जाएगा। एंड ये जो हेमिकीटल की फॉर्मेशन है ये क्या करेगी, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इथेनॉल की उसे डिस्टर्ब कर देगी, एंड दैट इज व्हाई इट इज ब्रेकिंग और वीकनिंग द बॉन्ड एंड इट इज शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन। तो ये पॉजिटिव डेविएशन इथेनॉल एसीटोन शो करेगा। बेंजीन टाउलिन नियर अबाउट आइडियल सोल्यूशन है। क्लोरोइथेन एंड ब्रोमोइथेन आइडियल सोल्यूशन है। एसीटोन क्लोरोफॉर्म नेगेटिव डिविएशन शो करता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर बिकॉज द न्यू जो बॉन्ड है, जो हेमिकीटल की फॉर्मेशन हो रही है, इट इज वीकनिंग द इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बिटवीन द ethanol and showing the positive deviation.